ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیوریٹ ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف۔ جو فائنلائزیشن ہے اس میں ان کا کنٹریبیوشن بڑا مددگار ثابت ہوا، اور آج ان کا وفد محترم شاہ محمود قریشی صاحب کی اور جہانگیر ترین صاحب کی قیادت میں اور دیگر قائدین جو ان کے ہمراہ آئے ہیں وہ شریک ہوئے ہیں آل پارٹیز کانفرنس میں، جن میں شفقت محمود صاحب بھی ہیں، میاں محمود الرشید صاحب بھی ہیں اور چودھری سرور صاحب بھی ہیں اور علیم خان صاحب۔ سب کو صمیم قلب سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ محترم شیخ رشید احمد صاحب، نام تو نہیں لکھ کے دیے، میں تو بھول جاؤں گا اس طرح، انہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور ایم کیو ایم کا وفد ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کی قیادت میں پہنچنے ہی والا ہے، کچھ تاخیر ہوئی، تاہم ان ایڈوانس خوش آمدید کہہ دیتا ہوں۔ پاکستان سرزمین پارٹی کا وفد مصطفیٰ کمال صاحب کی قیادت میں پہنچنے والا ہے، لاہور آ چکے ہوئے ہیں، ان کو بھی ان ایڈوانس خوش آمدید کہتا ہوں۔ پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم کا وفد کامل علی آغا صاحب کی قیادت میں اور چودھری ظہیر الدین صاحب اور میاں منیر صاحب یہ تشریف لائے ہیں، خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ میری کچھ مدد کرتے رہے نا ناموں میں۔ جماعت اسلامی کا اعلیٰ سطحی وفد لیاقت بلوچ صاحب کی قیادت میں آیا ہے، ان تمام قائدین کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ راجہ ناصر عباس صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں، مجلس وحدت المسلمین کے قائد۔ سنی اتحاد کونسل کے سربراہ صاحبزادہ حامد رضا کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ علامہ صاحبزادہ ابو الخیر محمد زبیر صاحب جمعیت علماء پاکستان کے سربراہ تشریف لائے ہیں، خوش آمدید کہتا ہوں۔ قاری زوار بہادر صاحب جمعیت علماء پاکستان نورانی گروپ کے سربراہ آئے ہیں۔ اسی طرح جمعیت علماء اسلام کے نظریاتی گروپ کے اور جمعیت علماء اسلام سمیع الحق کے قائدین، ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور خصوصاً محترم سردار عتیق احمد صاحب، سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر، اپنے بہت بڑے وقی وفد کے ساتھ آزاد کشمیر سے تشریف لائے ہیں اور دوسری بار آئے ہیں، اور انہوں نے بھی اس پورے پروگرام کی تیاری میں بڑی جماعتوں کی طرح بھرپور حصہ لیا، انہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور دیگر جماعتوں کے نمائندگان، قائدین، اب تمام 40 سے زائد جماعتیں ہیں جو شرکت کر رہی ہیں۔ مشکل ہوگا ایک ایک کا نام لے کے، اس میں بڑا وقت، تو میں انفرادی طور پہ اور اجتماعی طور پہ آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور کون پہنچے ہیں؟ اور چودھری ذوالفقار صاحب لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر تشریف لائے ہیں، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ان کا وفد آیا ہے ساتھ۔ اور محترم احسن بھون جو وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل ہیں وفد کے ساتھ، وہ تشریف لائے ہیں، ان کو ویلکم کرتا ہوں۔ اور دیگر اقلیتی پارٹیوں کے رہنما اور لیڈرز آئے ہیں، سب کو خوش آمدید کہنے کے ساتھ ایک درخواست کرنا چاہوں گا کہ میزبان کی ایک کمزوری ہوتی ہے، اور وہ کمزوری یہ ہوتی ہے کہ وہ میزبان ہوتا ہے۔ بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ محترم سید احسان شاہ صاحب تشریف لائے ہیں، انہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور مصطفیٰ کمال بھائی، آپ کو میں آپ کے پہنچنے سے پہلے خوش آمدید کہہ چکا ہوں، آلریڈی کہہ چکا ہوں، کوئی بات نہیں، کہہ چکا۔ اچھا، تو میزبان کی ایک کمزوری ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ وہ میزبان ہوتا ہے۔ یہاں کرسیوں کے ساتھ چٹیں لگائی جاتی ہیں، کرسیوں کے نمبر اور فکس کیا جاتا ہے، آرڈر فکس کیا جاتا ہے، مگر ہوتا یہ ہے کہ جب معزز مہمانان گرامی اور ان کے وفود آ جاتے ہیں اور رش کی وجہ سے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ ترتیب نظر انداز ہو جاتی ہے، جس میں میزبان کا قصور نہیں ہوتا۔ سارے مہمان معزز ہوتے ہیں تو کوئی کسی کو اٹھا نہیں سکتا، کسی کو شفٹ نہیں کر سکتا۔ ایسا ہو جانے کے بعد تو جو احباب ذرا دیر سے پہنچے، صاف ظاہر ہے کہ وہ میزبان
ताकत और हिम्मत के साथ उनकी कुर्सियां महफूज नहीं रख सकता। बुला मोहल्ला बाकी मेहमान इस्तेमाल कर चुके होते हैं, लिहाजा इस मसले का मैं 1990 से ये देखता चला आ रहा हूँ, 27 बरस का मेरा एक्सपीरियंस है। इसका हल किसी के पास आज तक नहीं हुआ। इसका एक हल है और वो ये कि वसी और ज़र्फ़ी के साथ दरगुजर करना और हर कोई इसको अपना घर समझे और सब मेहमानों को अपना मेहमान समझे, खुद को मेज़बान समझे, तो इससे बेहतर हल कोई नहीं। मकसद को सामने रखे। तो मैं कोई अगर कमी बेशी हो गई हो कुर्सियों की और मजालिस की तरतीब में, जिसका सबब मैंने अर्ज़ कर दिया कि उसका कसूर हमारे ज़िम्मे नहीं आता, मगर फिर भी माजरत ख़्वाह हूँ और आपसे यानी तवक्को करता हूँ आली ज़र्फ़ी की और दरगुजर की। इस्तिक़बालिया कलिमात के साथ मुझे आज आपका शुक्रिया अदा करना था जो फरीज़ा अदा कर चुका, और APC का आज का एजेंडा उसको बयान करना है। सानिया मॉडल टाउन और मुझे क्यों निकाला, ये दो चीज़ें आज के एजेंडे में, बल्कि आज के कौमी एजेंडे में कनेक्टेड हैं, आपस में नागुज़ीर तौर पर ये दो कज़िये जुड़े हुए हैं। और हाल और मुस्तकबिल के बारे में वाज़े राय और फैसला माजी के हालात को देख कर ही किया जा सकता है। ये दो कज़िये सानिया मॉडल टाउन और मुझे क्यों निकाला आज की कौमी सूरत हाल के साथ इसलिए जुड़े हुए हैं कि ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस आपको मालूम है जिस सिंगल पॉइंट एजेंडे पर बुलाई गई सानिया मॉडल टाउन का, अगर लोग समझें कि इसमें कोई मेरा कमाल है कि मैंने मुख्तलिफुल ख्याल जमातों को और क़यादतों को एक जगह जमा कर दिया, तो ये ख्याल गलत होगा। मैंने दुरुस्त बात है, मुख्तलिफ जमातें अपनी अपनी आइडियालॉजी रखती हैं, फ़िलासफ़ी रखती हैं, अपना अपना विजन और अपना अपना उनका बयानिया होता है। खामोश। उनके आपस में काम के सिलसिले में इख्तिलाफात भी होते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि कई जमातें अपनी इख्तिलाफात और फासलों के बायस मिलकर भी नहीं बैठती। ये एक अलमिया है जिसकी वजह से कौमी सतह पे एक नुक्ता नज़र और एक सिमत के तयन में मुश्किलात पेश आती हैं। मगर आज आपने देखा इस छत के नीचे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल व करम से तमाम जमातें, इस मुल्क की पार्लिमानी जमातें, सबसे बड़ी जमातें, मुवक्कर जमातें, मुअस्सिर जमातें और अपनी तारीख़ रखने वाली जमातें, अपनी आइडियालॉजी रखने वाली जमातें, बाहमी इख्तिलाफात के बावजूद एक छत के नीचे जमा हैं। इनको किसने जमा किया? इनको 17 जून के शहीदों के मुकद्दस खून ने जमा किया। पाकिस्तान अवामी तहरीक ने नहीं, न मेरी ज़ात ने, इनको खून शहादत ने जमा किया, यकजा किया। इनको 17 जून को जब गोलियां चली, उन माओं और बेटियों ने इनको जमा किया जिन्हें गोलियों के साथ शहीद किया गया और घसीटा गया। इनको उस बच्चे ने जमा किया जो अपनी हामिला मां के पेट में था, और जब उसकी मां पर गोलियां बरस रही थी तो वो अंदर से पूछ रहा था कि मैं तो अभी दुनिया में नहीं आया, मुझे किस जुर्म की पादाश में कत्ल किया जा रहा है। वो मां के पेट में उस बच्चे के सवाल ने इनको जमा किया। इन्हें हमारी माओं बहनों बेटियों की आबरूओं ने जमा किया, इन्हें बेवाओं की आहों ने जमा किया है, इनको यतीम बच्चे बच्चियों की चीखों पुकार ने जमा किया है, इनको उन जख्मियों ने जो गोलियों से छलनी थे जब वो तड़प रहे थे और उनका खून नीचे गिर रहा था, उन कतरात ने जमा किया है, इनको इंसानियत के दर्द ने जमा किया है, इनको इस तसव्वुर ने जमा किया है कि सारी जमातें अपने बाकी इख्तिलाफात के बावजूद हुर्मत इंसानियत के लिए इकट्ठी हैं, अदल और इंसाफ के हुसूल के लिए इकट्ठी हैं, जुल्म और बर्बरियत के खात्मे के लिए इकट्ठी हैं, इस मुल्क से अंधेर नगरी और ख़ानदानी बादशाहत का फिरौनी निज़ाम ख़त्म करने के लिए इकट्ठी हैं।
اور اس تصور نے ان کو جمع کیا کہ اس پاکستان میں اب حد ہو گئی ہے، اداروں کو مزید مسمار نہیں کرنے دیا جائے گا، اداروں کے تحفظ کے لیے اکٹھی ہیں، عدلیہ کے تحفظ کے لیے اکٹھی ہیں، افواج پاکستان کے تحفظ کے لیے اکٹھی ہیں، پاکستان کی سالمیت کی حفاظت کے لیے اکٹھی ہیں، ملک دشمن ایجنڈا کو ناکام کرنے کے لیے اکٹھی ہیں، اور پاکستان کے دشمنوں کا اعلی کار بن کر عدلیہ، فوج اور پاکستان کے ادارے اور جمہوریت کے خلاف جنگ چلانے والوں کے خلاف اکٹھی ہیں۔ یہ جمہوریت پسند جماعتیں ہیں، جمہوری جماعتیں ہیں، انسانیت دوست جماعتیں ہیں۔ میں ان کے اس عظیم جذبوں پر ان کا بار دیگر شکریہ ادا کر کے اور ان کی تصورات کی عظمت کو جس نے ان کو یہاں بلایا ہے میں سلام کرتا ہوں۔ حاضرین محترم، آل شریف 80s میں سیاست میں داخل ہوتی اور آتے ہی پولیٹیکل سسٹم میں انہوں نے سرمایہ کاری کی۔ نواز شریف صاحب نے مالی کرپشن، لوگوں کی خرید و فروخت، شخصی بادشاہت اور جمہوریت مخالف رویوں کا آغاز کیا۔ بہت سوں کو وہ تاریخ معلوم نہیں، اس لیے میں نے جملہ بولا کہ آج اگر حال کے بارے میں فیصلہ کرنا چاہتے ہیں اور مستقبل کا تعین کرنا چاہتے ہیں تو حال اور مستقبل کو اس شخص اور ان لوگوں کے ماضی سے کاٹ کر آپ تعین نہیں کر سکتے۔ ماضی سے ہی حال اور مستقبل جنم لیتا ہے۔ جنرل ضیاء الحق کے ذریعے انہوں نے ہر ایم پی اور ایم این اے کو 30 لاکھ سے 50 لاکھ روپیہ دیے، رشوت کا آغاز کیا اس ملک میں، کھلی رشوت کا اس ملک کی سیاسی تاریخ میں، اور جناب باغ کے جلسہ عام میں اعلان کروایا کہ یہ پیسے ہیں، اس سے اپنے قلعے مضبوط کرو۔ آج نواز شریف صاحب بات کرتے ہیں کہ میں نظریاتی ہوں، میں جمہوریت کی جنگ لڑ رہا ہوں۔ میں بتانا چاہتا ہوں آل شریف، آپ کیسے نظریاتی ہیں؟ کون سی جمہوریت ہے آپ کی؟ کون سی عدلیہ ہے آپ کی؟ اور کون سے جمہوری رہنما ہے آپ؟ میں آپ کو آپ کا ماضی دکھانا چاہتا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ حال میں جو ہو رہا ہے اور مستقبل میں جو کچھ آپ کے ساتھ ہونے والا ہے وہ بالکل جائز ہے۔ آپ نے 1988 کے انتخابات میں اپنے غیر جمہوری ناخداؤں کی سرپرستی میں الیکشن لڑے، 2 بار وزارت علیہ حاصل کی، اور پھر 1988 میں نہ صرف سندھ، نہ صرف کے پی کے، بلکہ بلوچستان اور پنجاب میں ایم این ایز، ایم پی ایز کو اور چھوٹے چھوٹے سیاسی دھڑوں کو کیش کے ساتھ خریدا۔ یہ ہے آپ کی جمہوریت۔ اور وہ لوگ جو آج ان کے ترجمان ہیں، جو ٹی وی پر آ کے ان کی دفاع کرتے ہیں، یہ تو ایسے چوزے ہیں کہ انڈوں سے بھی نہیں نکلے تھے اس وقت۔ یہ اس وقت انڈوں سے نہیں نکلے تھے چوزے۔ ان میں سے بہت سو خبر نہیں ہوگی، بہت سو کو انہوں نے کیش کے ذریعے دھڑے خریدے پورے ملک میں اور ٹریڈنگ کا بازار گرم کیا، اور پاکستان کی سیاسی تاریخ میں پہلی مرتبہ اس کھلی کرپشن کے ساتھ آلودہ کر دیا پولیٹیکل کلچر کو۔ میں نے 1966 سے لے کر 1977 تک کا دور بھی دیکھا ہے، پیپلز پارٹی کا بھٹو صاحب کی سٹرگل اور ان کی پیپلز پارٹی کا قیام، اور 77 کی ایم این اے پی این اے کی تحریک تک، ان کے اقتدار کے خاتمے تک میں نے وہ 10 سال بھی دیکھے۔ میں آپ کو پتا ہے کہ میں پیپلز پارٹی کا نہ کبھی ممبر رہا ہوں نہ آج ہوں، مگر یہ میرے ضمیر کی آواز ہے۔ پولیٹیکل سسٹم میں مالی کرپشن اور یہ ٹریڈنگ، ہارس ٹریڈنگ، یہ اس دور میں کبھی نہیں تھی۔ اس کے بانی نواز شریف صاحب ہیں اور آل شریف ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس ساری کاوشوں کے باوجود آج جن کے خلاف آپ جنگ لڑتے ہیں، ان کی سرپرستی نے آپ نے پریمیئر شپ کا الیکشن لڑا اور 14، 12، 15 سیٹوں سے ہارے، اور محترمہ بے نظیر بھٹو پرائم منسٹر بنی۔ پھر منتخب جمہوری وزیر اعظم کو وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھنا آپ کو گوارا نہ ہوا۔ یہ ہے آپ کی جمہوریت، یہ ہے آپ کا نظریہ۔ پھر آپ نے ان کے خلاف سازش کی اور 1.5 سال کے اندر 1990 میں ان کا حکومت منتخب وزیر اعظم کا تخت گرایا آپ نے سازش کر کے، اور اس کے بعد جب وہ وزیر اعظم بنی، تخت گرانے سے پہلے پھر آپ وزیر اعلیٰ بنے۔
वजीर आला का इलेक्शन लड़ा, और आप वो शख्स हैं जो MPAs को खरीद कर 3-3 लाख आपने बोली लगाई माइनॉरिटी के MPAs की, कैश देकर खरीदा। 6-6 लाख आपने मुस्लिम MPAs की बोली लगाई, कैश देकर खरीदा। नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब, क्या आप इनकार कर सकते हैं कि आप अपने हवारियों को ब्रीफ केस भर के नोटों का बेचते थे और कैश से खरीद के लाते थे MP MNA? मुझे जवाब दें, वो चूजे जवाब न दें जो उस वक्त अंडों में थे, वो लोग जवाब दें जिनकी आंखों के सामने सब कुछ होता था। आप कहां से जमहूरी हैं? आप कहां से अदलिया के हामी हैं? कहां से आपका कैरेक्टर डेमोक्रेटिक कैरेक्टर है? कहां से पॉलिटिकल कैरेक्टर है? कहां से आपकी आइडियोलॉजी जन्म लेती है? फिर आपने उनको इकट्ठा किया, फिर वजीर आला बनने के लिए आप उनको घेर कर छांगा मांगा ले गए। आप छांगा मांगा कल्चर के बानी हुए और पैसों से उनकी जेबें भरी, और आपने छांगा मांगा में 3-4 दिन उनको कैद रखा। यह है आपकी जमहूरियत, यह है आपका नजरिया, यह है आपकी सियासी स्ट्रगल। फिर उसके बाद बेदरेक सरमायाकारी के नतीजे में आपने अपनी जमहूरियत कायम की। इससे आपकी सोच, आपकी ज़हनियत, आपकी आदत, आपकी फितरत और आपके तर्ज सियासत की अच्छी तरह अक्कासी हो जाती। फिर 1990 की असम्बलियां आपने नहीं तोड़वाई हैं। बेनजीर भुट्टो साहबा को हटाकर फिर आप दोबारा बरसर इक़्तिदार आने के लिए साजबाज का हिस्सा नहीं हुए हैं। फिर 1997 में दोबारा आपने जमहूरियत पर हमला नहीं कराया है और मुंतखब वजीर आजम को फिर हटाकर इक़्तिदार पे बैठे हैं। आपको हक पहुंचता है जिसका पूरा माजी इतना भयानक, इतना घिनौना और इतना तारीख साजिशी है, वो बात करे जमहूरियत की तो बड़ा ताज्जुब होता है, वो बात करे नजरिए की तो बड़ा ताज्जुब होता है। फिर कितने आर्मी चीफ थे जो मुल्क की सालमियत की हिफाजत के लिए लड़ने वाले थे, आपने उन्हें गवारा नहीं किया। कितनों को आपने हटाया। आप क्या वो नहीं है जिन्होंने पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया, दीवारें फलांगी, सुप्रीम कोर्ट के बेंच को तोड़वा दिया और उस वक्त भी ब्रीफ केस देकर कैश भेजे। आपने किस किस को खरीदने की कोशिश नहीं की, किस किस इदारे को तोड़ने की कोशिश नहीं की, किस किस इदारे को मिसमार करने की कोशिश नहीं की। आपने जमहूरियत की जड़ें कब कब नहीं काटी। फिर आज पूछते हैं मुझे क्यों निकाला? आपको आपके अपनी उम्र भर के करतूतों ने निकाला। नतीजतन फिर जनरल परवेज मुशर्रफ ने टेक ओवर किया। फिर टेक ओवर किया तो आप में इतनी जुर्रत न थी कि जंग लड़ते पाकिस्तान में रहकर जमहूरी। आप मुआहदा करके पार्टी को भी छोड़ा, मुल्क और कौम और वतन को भी छोड़ा, खानदान को लेके बाहर भाग गए। ये आपकी जुर्रत और बेबाकी है, ये आपका नजरियाती होना है। आपसे सियासत के खिलाफ, आपके इस खानदानी बादशाहत के कयाम के खिलाफ, आपके इस भयानक अंदाज़े हुकूमत के खिलाफ फिर मैंने तहरीक शुरू की। और 2014 में अभी उस तहरीक के या धरने का ऐलान भी नहीं किया था, उसकी डेट मुकर्रर नहीं की थी। याद रख लें कि 2013 में भी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए एक धरना दिया था, मगर हमारे एक शख्स को गोली नहीं लगी थी इस्लामाबाद में। फिर 2014 में अभी धरने का आगाज नहीं होता, मैं कनाडा में हूं, पाकिस्तान नहीं आया, अभी तारीख मुकर्रर नहीं की, आपने रात के अंधेरे में शब खून मारा और रियासती ताकत को इस्तेमाल किया और 45 थाने और 12 फोर्सेस की सरकारी आदात के मुताबिक, रिकॉर्ड के मुताबिक 809 अफराद, जिनमें 204 स्नाइपर और शूटर हैं, सरकारी रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं, उनको भेजकर आपने लाशें गिरा दी, खून की नदियां बहा दी, गोलियों से जिस्मों को जख्मी कर दिया, बुढ़ापे बर्बाद कर दिए, लोगों के सुहाग उजाड़ दिए, बच्चों को यतीम कर दिया, औरतों को बेवा कर दिया और कोहराम मचा के कई घरों को उम्र भर के लिए माजूर और अपाहज लोगों का जगह बना दी। आप बर्दाश्त न कर सके, सिर्फ एक पुरअमन तहरीक उठने जा रही है, उसको थ्रेट समझा। यह है आपकी जमहूरियत, ये आपकी जमहूरियत है। फिर 3.5 साल की जंग लड़कर हमने जस्टिस नजफी कमीशन की सिर्फ रिपोर्ट हासिल की। दुनिया की तारीख में कोई इसकी मिसाल है
कि सिर्फ एक कमीशन की रिपोर्ट हासिल करने की कानूनी जंग 3.5 साल कोई लड़ता रहे, तब जाके रिपोर्ट मिली। और आज जब रिपोर्ट मिल गई, उसने शहबाज शरीफ साहब को, राना सनाउल्लाह साहब को, मैं आपको वेलकम कर चुका हूं। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, आपके पहुंचने से पहले, बेटे बैठे, आपको वेलकम कर दिया था भाई, मैंने वेलकम पहले कर चुका। खुश आमदेद सर, आपको बैठिए। ठीक है, तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि पाकिस्तान की तारीख में कोई ऐसा वाकया है कि एनक्रोचमेंट को हटाने के नाम पर आपने हजारों की तादाद में फौज भेजी हो अपनी पुलिस की, और उसमें दहशतगर्द नजरियाती सरकारी वर्दी पहनाकर भी एडिशनली भेजे हों, और फिर आज के दिन तक वो लोग जो मौके पर नजर आते हैं, वो डीआईजी ऑपरेशन, वो एसएसपीज, वो डीएसपीज, वो एसएचओ, शहादतें बात की बात है, जिन्हें सारी दुनिया ने नेशनल टीवी चैनल्स के जरिए देखा कि ये कत्ल गारत में बराह रास्त मुलव्वस थे। उनमें एक शख्स भी जेल में नहीं है, एक शख्स, जमानतें तक नहीं करवाई किसी ने, उनको नॉन बेरेबल वारंट नहीं किए गए। और शहबाज शरीफ साहब, आपको और राना सनाउल्लाह और आपके ब्यूरोक्रेट्स को जो 16 जून को आखिरी मीटिंग करके कत्ल गारतगरी का ऑर्डर दे रहे थे, उनमें से किसी को तलब तक नहीं किया गया। आप कहते हैं अदालतों में जाएं और इंसाफ लें, हम 3.5 साल से अदालतों में हैं, मगर जब तक आप बैठे हैं उस वक्त तक कातिलों की हिफाजत होगी। फेयर ट्रायल का रास्ता कभी हमवार नहीं होगा। ये उन शहीदों का खून है जिन्होंने, नवाज शरीफ साहब, आपको पनामा की सूरत, ये उन शहीदों के खून की तासीर है जिन्होंने आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से करप्शन के तहत सजा दिलवाई, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आपको झूठा, बददियानत और खाइन कहा, जिसके जरिए आपको दुनिया में जिल्लत और रुसवाई हुई। काबातुल्लाह के सेन और मस्जिद नबी में भी आप नहीं जा सकते। कल की बात है जी, मुझे मदीना पाक से टेलीफोन आया, कल 2 बार शहबाज शरीफ साहब निकले हैं नमाज जुमा के बाद शाम को जन्नतुल बकी के लिए, और लोगों ने चोर चोर के नारे लगाए और कातिल आला के नारे लगाए। पुलिस के लोग हंसते थे, सऊदी पुलिस के लोग, किसी ने नारे लगाने वालों को नहीं रोका। हत्ता कि जब पहुंचे जन्नतुल बकी का दरवाजा, उन्होंने स्केड्यूल से हट के इनके लिए खोला, मगर सैयदा कायनात फातिमतुज़ ज़हरा ने कल इनको अंदर नहीं आने दिया। दरवाजा खोला, पुलिस वाले साथ थे, मगर ये दरवाजे के बाहर से पलट के चले गए, इतने नारे लगे। ये कल शाम का वाकया। आपको तो खाना खुदा और रोज़ा रसूल पर दुनिया लानत भेजती है, इतनी जिल्लत और रसवाई कभी ना हुई थी। ये आप अपनी डाका जनी और आपकी चोरी और कत्ल गारतगरी, अब उसको छुपाने के लिए आपने अदलिया को गालियां दी, आपने अफवाज पाकिस्तान को गालियां दी, आपने सो कॉल्ड तहरीक अदल का नाम लिया जो आप कभी नहीं चला सकते। वो तहरीक आपकी सऊदी अरब चली गई। अब सऊदी अरब में गए अपने करप्शन के सरमाए को बचाने के लिए, और पाकिस्तान में चूंकि आप घिरे हुए हैं मुश्किलात में और आपका खात्मा होने वाला है, उस क्राइसिस से अपने आप को निकलवाने के लिए बैरूनी इमदाद मांगने गए हैं। नजरियाती लोग, जमहूरी लीडर, जुर्रतमंद अवामी लीडर बुज़दिल नहीं होते, बाहर की ताकतों के भिखारी नहीं होते। हर बार दौड़ के 1999 में भी आप गए और अब भी दौड़े हैं। आपके वहां लोकल करप्शन के मैटर्स को सेटल करना है, यहां की मुश्किलात से निकलना है, मगर आप मदद मांगने गए हैं। अगर आप में जुर्रत होती तो न जाती। ये है आपकी जमहूरियत, ये है आपकी जुर्रत, ये आपकी तहरीक अदल। बात आखिरी ये है कि नवाज शरीफ साहब, आपकी जमात, शहबाज शरीफ साहब, राना सना, आपकी कैबिनेट, आपकी ब्यूरोक्रेसी और पुलिस, ये सारा टोला इस वक्त मुल्क दुश्मन एजेंडे पर है। आप पाकिस्तान दुश्मन ताकतों के हाथ में आला कार बन के खेल रहे हैं। आपकी नजरियाती दोस्ती उन लोगों के साथ है जो पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं, जो पाकिस्तान के वफादार नहीं औरों के वफादार हैं। लिहाजा अब आप बच नहीं सकते। दुनिया की कोई ताकत आपको अपने मंतकी अंजाम में बद से बचा नहीं सकती। आपको जेलों में जाना होगा, अल्टीमेटली कानूनी प्रोसेस के बाद लटकना होगा और निशान इबरत बनना होगा। आप नहीं बचेंगे। इस्तीफा दें,
हमने डेट 31 कल की मुकर्रर कर दी है। उसके बाद मामलात आज से APC के सपुर्द हो जाएंगे, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के। अब सानिया मॉडल टाउन सिर्फ पाकिस्तान अवामी तहरीक का कज़िया नहीं रहा, मुकदमा हमारा नहीं रहा। आज से ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस इसको ऑन कर लेगी। ये मुल्क की सारी सियासी मजहबी जमातों का मुश्तरका मुकदमा है, मुश्तरका कज़िया है। फैसले मुश्तरका होंगे, लाएअमल मुश्तरका होगा, ऐलान मुश्तरका होगा, इकदाम मुश्तरका होगा। और सुन लें कि हम कानूनी ऑप्शन भी ले रहे, इस्तीफा भी मांग रहे हैं। कानून के आगे सरेंडर करें, मजलूमों के इंसाफ की फराहमी का रास्ता हमवार करें। अगर अब भी ना हुआ जस्टिस नजवी कमीशन रिपोर्ट के शाये हो जाने के बाद, तो इसका मतलब ये होगा कि पाकिस्तान में कमजोर को कभी इंसाफ नहीं मिल सकता। लिहाजा आप गिरफ्तार होंगे। और आपका ये कहना कि APC में शामिल पार्टीज कोई किसी का कंधा इस्तेमाल कर रहा है, मैं सिर्फ ये पूछता हूं कि सऊदी अरब में कौन किसका कंधा इस्तेमाल करने गया है? वहां भी तो कंधा इस्तेमाल हो रहा है। कौन कर रहा है, किसका कर रहा है? ये शहीदों का खून है, मजलूमों, कमजोरों और शहीदों के वारसों का खून है। उन्हें करोड़ों अरबों रुपए की आपने ऑफर्स की 3.5 साल में, उन्होंने आपकी कानूनी दौलत पे लानत भेज दी, ठुकरा दिया। आप उनका ज़मीर नहीं खरीद सके इंशाअल्लाह। और अब आप अपने अंजाम से बच नहीं सकते। मामलात अब तन्हा पाकिस्तान अवामी तहरीक या मेरे हाथ में नहीं, अब मामलात पूरी कौम ने और पूरी कौमी क़यादत ने डायरेक्टली अपने हाथ में ले लिए हैं। फैसला भी इकट्ठा क़यादत इज्तिमाई करेगी, लाएअमल और ऐलान भी इकट्ठा होगा। बता देना चाहता हूं, अवामी अदालत भी लगेगी, लग सकती, एहतजाज भी हो सकता है, धरना भी हो सकता है, और कुछ भी और हो सकता है। आइन और कानून और अमन के दायरे के अंदर जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस फैसला करेगी, सारी ऑप्शन ओपन है। लेकिन अगर धरना होगा तो आपके इक़्तिदार को मरना होगा, फिर आप बच नहीं सकते। अगर धरना होगा तो आपके इक़्तिदार को मरना होगा। हमारे साथ आइन की ताकत है, कानून की ताकत है, जमहूरियत की ताकत है, अमन की ताकत है, पाकिस्तान के करोड़ शहरियों की ताकत है, पूरी कौमी क़यादत की ताकत है, और सबसे बढ़कर अल्लाह की मदद और नुसरत की ताकत है। आप बच नहीं सकते बारे दिगर। और इसमें आप माशी इस्तेकाम की बातें करते हैं। आपका आलम यह है कि डिफेंस और डेवलपमेंट के बजट से ज्यादा आपने इतना मकरूज कर दिया है पाकिस्तान को कि सिर्फ इंटरेस्ट की अदायगी डिफेंस और डेवलपमेंट के बजट से ज्यादा है। 1350 अरब रुपए, 1350 अरब सिर्फ सूद की अदायगी में दिया जा रहा है, सिर्फ इंटरेस्ट। जबकि 1000 अरब का बजट डेवलपमेंट का है और 920 अरब का बजट मुल्क के डिफेंस का है। मुल्क का डिफेंस भी पीछे रह गया, मुल्क की डेवलपमेंट पीछे रह गई। 1350 अरब सिर्फ पे किए जा रहे हैं सूद पर। कर्ज नहीं अदा हो रहे, कर्जों पर चढ़ने वाले इंटरेस्ट की अदायगी हो रही है। इस मुल्क का क्या बना दिया है आपने, और आप कहते हैं माशी इस्तेकाम है और हमने तरक्की की। खत्म नबुव्वत के मसले को आपने छेड़ा, बैठे बैठाए, जो आइन में जुल्फकार अली भुट्टो साहब के जमाने से हमेशा के लिए तय हो गया था। आपने मैसेज देकर अपनी बहाली की खातिर लोगों के ईमान पर हमला किया और उनके ईमानी खैरत को ललकारा। किसान अपनी अजनास जला रहे हैं, उनको कीमत नहीं मिल रही। मजदूर तंग हैं, यंग डॉक्टर्स तंग हैं, नाबीना तंग हैं, टीचर्स तंग हैं। सारी दुनिया एहतजाज पर है, पढ़े लिखे नौजवानों को बेरोजगार नहीं। इन सारे हालात में दुनिया, सारी कौम एक तरफ, और कौमी सलामती और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ दोनों आमने सामने आ गए। एक जंग है, इधर अशराफिया सल्तनत शरीफिया है, इधर पाकिस्तान की सलामती है। इन दो के दरमियान जंग छिड़ गई है। APC और पूरी कौम फैसला करेगी कि अब सल्तनत शरीफिया की बजाय पाकिस्तान की सालमियत और इंसानी हुर्मत का तहफ़्फ़ुज़ होगा, और आपको जाना होगा इंशाअल्लाह ताला, और इंसाफ होगा। फिर तमाम कायदीन और शुरका का शुक्रिया अदा करता हूँ उनकी शिरकत पर और इस मेहरबानी पर। और उसके बाद जो हाउस है वो इंशाअल्लाह ओपन हो जाएगा ताकि कायदीन अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें।
ये कुछ कायदीन अपनी गुफ्तगू करेंगे, फिर एक रेजोल्यूशन की बनाने की कमेटी बनेगी, फिर रेजोल्यूशन ड्राफ्ट करने के लिए कमेटी ऑफिस में जाएगी, वो रेजोल्यूशन तैयार करके लाएगी, वो तकसीम होगा, डिस्कस होगा। जब तमाम डिस्कशंस के बाद होगा तो आपको दोबारा बुला लिया जाएगा, उस वक्त आपको बुलाया जाएगा, फिर आप तमाम कायदीन से क्वेश्चंस आंसर भी करेंगे। उस वक्त एलामिया पढ़ा जाएगा और सिर्फ ये कायदीन आपसे बात करेंगे। मैंने इस्तिक़बालिया कलिमात में और एजेंडे पर जितनी बात करनी थी कर ली। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। सानेहा मॉडल टाउन से इंसाफ आज से सिर्फ पाकिस्तान अवामी तहरीक की तहरीक नहीं रही, बल्कि तमाम सियासी जमातों ने इसे ओनरशिप इसकी ले ली है। और याद रखें कि अगर धरना होगा तो आपकी हुकूमत को मरना होगा।